Hello learners, how are you? Here your teacher Amita. Today we are going to learn a new poem, The Laburnum Top by Ted Hughes. Dear learners, first of all I am going to tell you the central idea of the poem. The poem Laburnum Top, The Laburnum Top is a beautiful poem in which the poet has used the laburnum tree as a symbol of life, and goldfinch, which is a bird, is also used as a symbol of life and its fluctuation. In this poem, the poet describes how the visit of a goldfinch changes the laburnum top. यहाँ पे पोएट डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से एक पेड़ के ऊपर जब गोल्डफिंच बर्ड आकर रहती है तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है और उसके अंदर किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है. द गोल्डफिंच ट्रांसफॉर्म्स द ट्री and makes it come alive as the chicks of the goldfinch start to rustle and chirp on seeing her. और किस तरह से गोल्डफिंच पेड़ पर जब आती है और उसके बच्चे वहाँ चहचहाते हैं तो एकदम से रसल एंड बसल वहाँ पर हो जाती है. वहाँ पे चहचहाहट होने लगती है, खुशियाँ आ जाती हैं, रौनकें लग जाती हैं. Once the goldfinch leaves the tree, एक बार जब गोल्डफिंच पेड़ छोड़ देती है, it becomes quiet and still again. और फिर क्या होता है, वो पेड़ फिर से सूना हो जाता है, क्वाइट हो जाता है और स्टिल हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं रहती. The laburnum tree symbolizes the pattern of our life in general. जो ये लेबनम ट्री है ये हमारी ज़िंदगी का जो एक नॉर्मल पैटर्न है उसको सिम्बलाइज करता है, विच इज़ यूजुअली डल एंड इनएनिमेट, क्योंकि ये मोस्टली डल और इनएनिमेट होता है. द गोल्डफिंच ब्रेक्स द यूजुअल पैटर्न एंड मेक्स इट लाइफ. लेकिन इस के अंदर जब कोई गोल्डफिंच आ जाती है तो उसके अंदर एक पैटर्न चेंज हो जाता है और हमारी ज़िंदगी जो है वो लाइवली हो जाती है. इसलिए ज़िंदगी के अंदर एनर्जी रहनी चाहिए, तभी ज़िंदगी जो है वो खुशहाल नज़र आती है. उसके अंदर हसल एंड बसल और चिरप और मुस्कुराहटें रहती हैं. विदाउट द गोल्डफिंच द laburnum ट्री इज़ जस्ट लाइक अनदर ट्री. गोल्डफिंच के बिना, इस बर्ड के बिना जो कि एक ज़िंदगी का सिंबल है, ये पेड़ दूसरे laburnum ट्री की तरह ही है. इन अदर वर्ड इट इज़ द एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन टूवर्ड्स लाइफ दैट मेक्स लाइफ मीनिंगफुल एंड वर्थ लिविंग. अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो ये इंसान का एटीट्यूड ही होता है जो कि ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाता है और वर्थ लिविंग बनाता है. Dear students, let us start the recitation of the poem. The laburnum top. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seed fallen. Now I am going to tell you the meaning of the difficult words which you have seen in these three first lines. Laburnum top, it means top part of the laburnum tree. इसका अर्थ है laburnum tree का सबसे ऊपर का हिस्सा. Now I am going to explain the three lines. The poet describes a beautiful sunny autumn. The laburnum tree is silent and still. It is laden with yellow leaves and yellow flowers in September. Its leaves have turned yellow because of the autumn season and all its seed have fallen. तो यहाँ पे क्या है, सितंबर के तीसरे पहर की पीली धूप में जो अमलतास के पेड़ का शिखर है वो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल स्थिर है. उसके कुछ पत्ते पीले पड़ गए हैं और उसके सभी बीज नीचे गिर चुके हैं. So my dear students, this was the explanation of first three lines. Now I am going to recite the next paragraph, next stanza of this poem. You can see, till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt. She enters the thickness and a machine starts up, of chittering and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stocks it full, then flirts out to a branch end, showing her barred face, identity mask. Dear students, now I am going to tell you the meaning of the difficult words. Goldfinch, it means a yellow small bird. Twitching means a small, often involuntary movement
of the body. Chirp, the sound made by a bird. Startlement means amazement. Sleek means smooth. Abrupt, suddenly. Chittering, sound made by a baby bird. Tremor means shaking. Trilling, to sing a series of quick repeated high notes. Trembles and trills, you can see here, trembles and trills. It means shakes violently. The engine of her family means the goldfinch. Who is the engine of her family? The goldfinch, the bird. Stalks, adds fuel. Here the goldfinch is feeding her chicks. Chicks means children. Flirts, moves abruptly or jerkily with light steps. Barred, stripped. So now I am going to explain the stanza in easy English and Hindi, of course. Just then a goldfinch alight on the laburnum tree, making short, high-pitched sound. The goldfinch has her nest in the tree and her chicks are resting in the nest. So तभी क्या होता है कि गोल्डफिंच लेबनम ट्री पर आती हैं और हाई पिच साउंड जो है वो प्रोड्यूस करती हैं. ये बर्ड अपने इस पेड़ के ऊपर आकर एक नेस्ट बनाती हैं और उसके चिक्स जो हैं, उसके बच्चे जो हैं वो नेस्ट के अंदर रेस्ट कर रहे हैं. ऑन द मदर्स रिटर्न अ सडन मूवमेंट स्टिर्स द ट्री. माँ के वापस आने पे एक अचानक मूवमेंट पेड़ को हिलाने से लग जाती है. हर लिटिल वंस आर एक्साइटेड ऑन हर अराइवल एंड स्टार्ट चिरपिंग. जब माँ वापस फिर से पेड़ पर आ जाती है तो बच्चे एक्साइटमेंट में फिर से चहचहाने लगते हैं. द कोशियस मदर एंटर्स द ट्री विद ग्रेट केयर सो दैट नो प्रीडेटर कैन कम टू नो दैट हर बेबीज आर हाउस्ड इन द नेस्ट. माँ इतनी अलर्ट है कि वो जब पेड़ पे आती है तो इतनी केयर के साथ आती है ताकि किसी को भी पता ना चले कि इस पेड़ के ऊपर उसके बच्चे भी रह रहे हैं. अब यहाँ पे पोएट जो है हैज़ कंपेयर्ड द अलर्ट, अब्रप्ट एंड स्लीक मूवमेंट ऑफ गोल्डफिंच विद दैट ऑफ अ लिजार्ड. यहाँ पे जो पोएट है वो गोल्डफिंच की मूवमेंट को लिजार्ड की मूवमेंट के साथ कंपेयर करता है. द गोल्डफिंच हैज़ बीन कॉल्ड द इंजन ऑफ हर फैमिली. और यहाँ जो गोल्डफिंच है उसको फैमिली का इंजन भी कहा गया है. जस्ट एज द इंजन स्टार्ट्स अप द मशीन, हर अराइवल इन द नेस्ट हैज सडनली स्टार्टेड अप द साइलेंट नेस्ट, साइलेंट मशीन. जैसे कि इंजन मशीन को स्टार्ट करता है उसी प्रकार जो गोल्डफिंच है, ये बर्ड है, जब पेड़ के ऊपर आती है तो उसकी फैमिली का इंजन जो है वो है और पूरी लाइफ की मशीनरी स्टार्ट हो जाती है. द यंग वंस हैव स्टार्टेड चिटरिंग एंड मेकिंग नॉइज़. और उसके छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे बर्ड्स वो चिटरिंग करने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं और शोर मचाने लगते हैं. बाई फीडिंग हर यंग वंस शी हैज़ एडिड फ्यूल टू द मशीन एंड एज अ रिजल्ट द चिक्स नाउ हैव द एनर्जी टू बी एक्टिव एंड मेक नॉइज़. उनको वो भोजन खिलाती है जिससे उस मशीन में एक फ्यूल ऐड हो जाता है. जैसे कि किसी भी मशीनरी में फ्यूल डालने से वो मशीनरी काम करने लग जाती है, उसी प्रकार जब इन बच्चों को वो खाना खिलाती है, भोजन देती है, तो ये मशीनरी भी एक तरह से काम करने लग जाती है. एंड एज अ रिजल्ट द चिक्स नाउ हैव द एनर्जी टू बी एक्टिव एंड मेक नॉइज़. और ये बच्चे एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, एकदम से स्मार्ट हो जाते हैं और नॉइज़ करने लगते हैं. आफ्टर फीडिंग हर चिक द गोल्डफिंच फ्लाइज अप. और जो खाना खिलाने के बाद ये गोल्डफिंच वहाँ से उड़ जाती है और फिर उसके बाद एंड रेस्ट ऑन द एंड ऑफ अ ब्रांच ऑफ द ट्री. और एक उसी पेड़ की ब्रांच के एंड पे आराम करने लगती है. हर आइडेंटिटी कंसील्ड बिहाइंड द येलो फ्लावर्स एंड येलोइंग लीव्स. उसकी आइडेंटिटी येलो फ्लावर्स और पीले पत्तों के पीछे ही छिपी रहती है. सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लाइन्स. नाउ आई एम गोइंग टू रिसाइट द नेक्स्ट lines. You can see, then with airy delicate whistle chirrup whispering, she launches away towards the infinite. You can see the last lines. Now I'm going to tell you the meanings of these words which are difficult in these two lines. Yes, one line is left. Let us continue with that. And the laburnum subsides to empty.
Now let us know about the meanings of the difficult word. The first one is eerie. Strange in a frightening or mysterious way. कोई भी चीज़ जब डरावनी हो या थोड़ी सी मिस्टीरियस नज़र आए और अजीब लगे तो उसे हम eerie बोलते हैं. Launches means flies. Infinite means the sky. अनंत आकाश. Subsides to empty means फिर से साइलेंट हो जाता है. Become silent just as earlier, जैसे कि पेड़ पहले था. Means यहाँ पे जब गोल्डफिंच आती है तो चहचहाहट हो जाती है, लेकिन जब उड़ जाती है तो वो फिर से खाली हो जाता है, साइलेंट हो जाता है जैसे कि पहले था. So subsides to empty. Now I am going to explain these lines. See carefully and please listen and watch these lines also. Look at these last 3 lines. After some time the goldfinch makes a strange short high pitched sound. कुछ समय के बाद जो गोल्डफिंच है वो एक स्ट्रेंज शॉर्ट और हाई पिच साउंड निकालती है. देन शी फ्लाइज अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट स्काई. और उसके बाद वो इनफाइनाइट स्काई की तरफ उड़ जाती है. टूवर्ड्स द इनफाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट अनंत आकाश की तरफ उड़ जाती है. एंड द लबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी मीन्स जो लबरनम पेड़ है वो फिर से साइलेंट हो जाता है गोल्डफिंच के डिपार्चर के बाद. एंड एवरीथिंग सीम्स टू बी द सेम एज इट वॉज बिफोर द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच. और गोल्डफिंच के आने से पहले जिस तरह से उस पेड़ पे शांति थी फिर से उस पेड़ पे उसी तरह की शांति हो जाती है. सो माय डियर लर्नर, दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लास्ट फ्यू लाइन्स. Dear learners, now let us know about the poetic devices used in the poem. First, simile. In the second stanza, you can see that there is a phrase sleek as a lizard. So, इस phrase के अंदर lizard को sleek as a lizard comparison किया गया है. यहाँ पे as का इस्तेमाल किया गया है. जहाँ पे भी दो चीज़ों की तुलना आपस में की जाती है और वहाँ पे लाइक और एज का इस्तेमाल होता है तो उसको सिमिली कहते हैं. तो यहाँ पे सिमिली का इस्तेमाल किया गया है. नेक्स्ट देखिए मेटाफर. इन दिस फिगर ऑफ स्पीच अ वर्ड फ्रेज इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट समथिंग एल्स. एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफर इन द पोएम आर इंजन ऑफ हर फैमिली. तो यहाँ पे गोल्डफिंच बर्ड को इंजन ऑफ हर फैमिली कहा गया है, जो कि बिल्कुल ही एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन है. तो जब दो चीज़ों के बीच में जिनका आपस में कोई तालमेल ना हो और उसको कंपेयर किया जाए बिना लाइक और एज के तो उसको हम मेटाफर कहते हैं. सो मशीन विच रिप्रेजेंट द नेस्ट विद इट्स ब्रूड ऑफ बर्ड चिक. ठीक है, तो इस तरह से उसको इंजन कहा गया है. नाउ द नेक्स्ट इज alliteration. In this figure of speech, a number of words having the same फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड अक्कर क्लोज टुगेदर इन अ सीरीज़. तो एक सीरीज़ में जब कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड की स्टार्टिंग में बार बार आते हैं तो उनको एलिट्रेशन कहते हैं, जिसे हम पुनरावृत्ति अलंकार भी कहते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन इन दिस पोएम्स आर सेप्टेम्बर सनलाइट इज सडन अ स्टार्टलमेंट अलर्ट एंड एब्रप्ट ट्री ट्रैम्बल्स एंड ट्रिल्स. तो आपने देखा कि इसके अंदर स फिर से स अ ट साउंड्स जो कि कॉन्सोनेंट हैं बार बार रिपीट हुई है. तो ये एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है. Dear learners, the next device which is used in this poem is onomatopoeia. So here in this figure of speech a word is formed from a sound similar to it. Example of onomatopoeia in this poems are twitching chirrup, chittering, trillings, whistle chirrup. तो जब साउंड्स का बार बार इस्तेमाल होता है तो उसे ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है. नेक्स्ट है ट्रांसफर्ड एपिथेट. ए ट्रांसफर्ड एपिथेट इज अ description which refers to a character or event but is used to describe a different situation or character. Her barred face identity mask is an example of transferred epithet. तो यहाँ पे her barred face identity mask एक ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल है. द फ्लावर ऑफ द laburnum tree fall like bars and the bird sits behind the flowers. So the shadow of the flowers on her face looks like as she is wearing a mask and has bars on it.
So this is the example of transfer epithet. So my dear learner, these were the poetic devices used in the poem. Now dear learners, through this poem, writer wants to give us a message, and he describes a mutual relationship between a laburnum tree, which is a large, beautiful but quite alone, and a goldfinch bird, which is quite amusing, beautiful but without a shelter. The laburnum tree gives us the house to the birds and its young chicks, and the bird in turn takes away its dead silence. Thus, the poet here in the poem wants to tell the reader that the importance of living with each other. Every person has different capacities and things. We should live with each other. We should live with each other and always try to lend a helping hand, and the other will also do the same. So whatever you want from others, try to do the same with the others. I hope that you have enjoyed the poem a lot. Keep watching, keep learning, and have a nice day.